हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट। दिस इज द BS6 मॉडल। सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ. So split seat is priced at 79,000 rupees ex showroom. And before we even talk about what all we get on this motorcycle, let's first talk about the design. The iconic Pulsar design till today it looks so good. सामने आपको rounded elements मिलते हैं, पीछे sharp elements मिलते हैं. I just love the design. It's really good. सामने आपको halogen headlight मिल जाती है with these pilot lamps. You get disc brake. Coming to the engine, so this is now BS6 compliant. इसमें आपको electronic injection technology मिल जाएगी. And talking about power figures, so this engine produces 11.8 PS and 10.8 Nm torque, which is best in class power and torque figures. Also, this engine gets a counterbalancer to reduce vibrations. So अभी अपन देखेंगे how it performs. Also on split seat you get this engine cowl which adds to the sporty presence of this motorcycle. When you look at the engine cowl from here, you see it completes the design really nicely, so that is really good. You also get these neon accents all over the bike. आपको यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, सामने भी, also on the wheels. So that really looks good. You also get first in class clip-on handlebars. So that is there. Coming to the instrument cluster. So ये part digital, part analog है. Analog side में आपको tachometer मिलता है. On the digital part you have speed, trip meters and all those things. And according to me, you all know, I just love analog tachometers. So that is good. Also fit and finish and switch gear quality is really good. कोई भी मेरे को ऐसे quality में दिक्कत नहीं लग रही है. Panel gaps भी अच्छे से aligned है. That is good. Split seat जैसा नाम है, so आपको split seat मिलती है. Few differences compared to normal Pulsar 125. अगर आप split seat को normal से compare करें, वो है engine cowl, split seat and these grab handles. Grab handles normal 125 में ऐसे पूरे rounded वाले, इसमें आपको ये sporty वाले मिलते हैं, which really complement the design. You get the 125 badging, LED tail light, wide rear tire, anti-skid braking, so safety is there. Exhaust also looks good. मैं आपको इसका exhaust note भी सुनाऊंगा. So overall the bike looks really good, and the thing I like the most is the presence of this motorcycle, the muscularity of this motorcycle, because you see most of the 125cc motorcycles they look really slim, really lean, but यहाँ पे आप देखिए it has that presence. So that is really good. And अब एक काम करते हैं, इसका exhaust note सुन लेते हैं and then we'll ride it. And before we listen to the exhaust note, एक feature जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, and that is you can start the bike using the kick in any gear. आपको न्यूट्रल लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग देख सकते हैं अभी न्यूट्रल में नहीं है. It's in first gear and all I need to do is मेरे को सिर्फ किक मारनी है, कुछ नहीं, ना क्लच पकड़ना है ना कुछ. So it will start in any gear and that is really good. So let's go, start करते हैं इसके इंजन से. So जैसे ही मैंने आपको बताया कि it has best in class power as well as torque figures. Initial pickup is really good. You have good bottom end torque. So गाड़ी को उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. And also one thing that I really like about this engine is you see most of the engines, or you can say most of the engines in the commuter segment have good initial pickup, but उसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है. But यहाँ पे all through the rev range you have really good power till the red line. It has really good power. गाड़ी पुल करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है. And because of the counterbalancer you have no vibrations, zero vibration even at the red line. मैं अभी इसको एकदम red line पे रखा हुआ था, but still there were no vibrations to be felt. And that is just amazing. That is just out of this world. Like zero vibrations even at the red line. So that will give you a really good experience with this motorcycle. Also when you will be riding this motorcycle at higher speeds on the highways, the engine feels so damn refined. Like even if I keep it at the red line now, बिल्कुल भी मेरे को refinement का issue नहीं लग रहा है.
सो उसकी वजह से आप हायर स्पीड कैरी कर सकते हैं, वाइब्रेशन नहीं है तो हायर स्पीड कैरी कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे दूर तक जा सकते हैं विदाउट एनी फटीग. So that is there. Coming to the gearbox, so this is a 5-speed unit. You get toe and heel shifter. So उसकी वजह से shifting already बहुत easy हो जाती है. And this gearbox is really good. बिल्कुल भी आपको false neutral या false shifts नहीं देता है. Even if you do multiple downshift या फिर आप खड़े होके एकदम से जैसे 4th गियर पे गाड़ी रोक दी और फिर डाउनशिफ्ट करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्सो द क्लच इज लाइट. कमिंग टू द सिटिंग पोजीशन, सो इट्स रियली कंफर्टेबल. यू गेट क्लिप ऑन्स. उसकी वजह से आप सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं बट दैट इज नेवर अनकंफर्टेबल. फुट पैक पोजीशन बहुत अच्छी है. सीट इज रियली सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल. सो कंफर्ट के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. कमिंग टू द सस्पेंशन, सो ये सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन है. इतनी कंफर्टेबल राइड देता है, मतलब पॉटहोल्स गड्ढे इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है कि आपको पता भी नहीं चलने वाले हैं. मतलब जब मैं यहाँ पे अभी आ रहा था तो रोड के बीच में और रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं ना छोटे छोटे, एंड कभी अगर आपने उनके ऊपर बाइक चलाई हो तो आपको पता होगा पूरी बाइक ऐसे ऐसे उछलने लगती है. बट मैं उनके ऊपर बाइक चला रहा था और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं उनके ऊपर बाइक चला रहा हूँ. द सस्पेंशन वॉज डूइंग सच अ गुड जॉब. सो कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. बट येस, बहुत ज़्यादा आपको इससे फीडबैक नहीं मिलेगा क्योंकि ये सॉफ्टली स्प्रंग है. बट व्हेन यू आर डूइंग कॉर्नरिंग और व्हेन यू आर डूइंग अग्रेसिव लीन एंगल्स, हैंडलिंग अच्छी है. गाड़ी बिल्कुल भी वॉबल नहीं करती है, ना ही आउट ऑफ कंट्रोल होती है. कंट्रोल के मामले में कोई दिक्कत नहीं है बट यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक. लाइक रोड पे अगर कुछ जैसे पत्थर आ जाता है, गाड़ी अनसेटल नहीं होगी बट आपको उस पत्थर के बारे में पता भी नहीं चलेगा बिकॉज सॉफ्टली स्प्रंग सस्पेंशन है. सो वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको फीडबैक नहीं मिलता है. सो दैट इज देयर. Coming to the mileage, so you can expect around 55 kilometers per liter from this motorcycle, which is a really good figure. And considering the petrol prices nowadays, ये एक अच्छा फिगर है. Like it will help you save a lot of money. Coming to the brakes, so सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे ड्रम है. You have anti-skid braking. Talking about the rear brake, good. The stopping power is good, feedback is good. Considering it's a drum setup, it is a really good braking system. Talking about the front brake, good man, really good. Like the bite is strong, it's really powerful, but modulate करने में कोई भी दिक्कत नहीं है. You can easily modulate it. Feedback is good, stopping power is really good. So it's a good braking system. लाइक ब्रेकिंग के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. ऑल्सो एवरीथिंग दैट यू टच फील्स ऑफ रियली गुड क्वालिटी. द स्विच गेयर क्वालिटी इज रियली गुड. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रीड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. एंड यू ऑल नो आई जस्ट लव एनालॉग टैकोमीटर्स. So that is there. Like you can see the needle working as soon as you shift. So that is really involving. But आप लोग मेरे को बताइए what kind of tachometer you like, analog or digital. Also one thing is there, इस गाड़ी को चलाने में ना बहुत ज़्यादा involvement feel होती है. It's not like other commuter motorcycles जिसको आप सिर्फ चलाते हैं एंड कम्यूट करते हैं बट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट. आप भी गाड़ी के साथ चलते जा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट फील होती है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल. बिकॉज यू सी डूइंग द सेम कम्यूट एवरी डे, लाइक मैं कॉलेज जाता हूँ बट राइडिंग ऑन द सेम रोड अगेन एंड अगेन कैन बी बोरिंग. लाइक सेम ट्रैफिक, सेम रोड, सेम जर्नी, सेम थिंग्स टू सी एवरी डे. सो इफ यू हैव अ नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है. बट इफ यू हैव अ मोटरसाइकिल दैट इज इन्वॉल्विंग टू राइड, जिसको चलाने में आपको मज़ा आए, तो ये बोरियत वाले रास्ते भी ना मज़ेदार हो जाते हैं. आपको बहुत ज़्यादा बोरियत नहीं होती है एंड यू एंजॉय राइडिंग. आपका मूड भी अच्छा रहता है. सो दैट इज़ देयर. ऑल्सो वन थिंग आई नीड टू शो यू ऑल. मैं अभी इंजन को रेव करूँगा, आप लोग से मिरर्स देखना. मैं जो आप लोग को वाइब्रेशन के बारे में बताया था ना, आप लोग से मिरर्स देखना. Did you see any vibration? No, because there are no vibrations on this motorcycle and that is just amazing. Like mirror तक vibrate नहीं करता है यार, इतना सा भी vibrate नहीं करता है. So हैंडल बार तो ये सब तो भूल ही जाइए आप. One more thing that I really like about the Pulsar 125 is the presence of this motorcycle. You see, like when you look at other commuter motorcycles, first of all, they feel really slim. उनमें आपको बहुत ज़्यादा presence नहीं मिलती है. And especially for people like me, जिनकी थोड़ी सी बॉडी वॉडी बन गई है जब से जिम खुले हैं आफ्टर द लॉकडाउन, एंड जिनकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, उनको ये पतली और कम प्रेजेंस वाली मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा सूट नहीं होती है.
बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस डज नॉट फील लाइक अ 125, इट फील्स लाइक अ 150cc मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ साइज. सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. आपको एक बिग बाइक फील मिलता है. द टैंक इज बिग, यू हैव ऑल दिस एरिया. सो उसकी वजह से इसको चलाने में अच्छा लगता है. द बाइक स्टेज रियली प्लांटेड, रियली स्टेबल इवन एट हायर स्पीड. ऑल्सो इस बाइक को सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज इट्स रियली फ्लिकेबल, रियली मनूवरेबल. आप इसको ईजिली टर्न कर लेंगे. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ गुड बॉटम एंड टॉक, गाड़ी को उठाने में या पिकअप लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है. सब बात करते हैं शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग. आज सुबह से मेरा मूड इतना खराब था क्योंकि जो मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे ना, उसके फर्स्ट एग्जाम में मेरा लॉग इन तक नहीं हुआ. मेरे सारे दोस्तों का हो गया था, मेरा नहीं हुआ. सो वो फर्स्ट एग्जाम आज सुबह मैं दे के आ रहा हूँ. एंड यू ऑल नो अकेले एग्जाम देना इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो उसकी वजह से मेरा मूड बहुत खराब था. बट एज सून एज आई स्टार्टेड राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है. एंड दैट इज वेयर आई थिंक दिस मोटरसाइकिल मेक्स द मोस्ट सेंस. बिकॉज यू सी, doing the same commute every day, same journey, same road, same traffic can be really boring. Really boring. But if you want some fun in your daily commutes, this motorcycle is the best for it. Because you see, the engine is very sporty. It has really good power and बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है. बिकॉज ऑफ द काउंटर बैलेंसर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है. पल्सर का DNA मिलता है आपको इस मोटरसाइकिल में. सो स्पोर्टीनेस आपको मिलेगी इसमें. इट्स नॉट लाइक योर एवरेज कम्यूटर. सो इसको चलाने में यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. इट्स रियली इन्वॉल्विंग. एंड जो आपके डेली के कम्यूट्स होंगे ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. माइलेज भी अच्छा मिलेगा. बजाज के सर्विस नेटवर्क और अफोर्डेबल सर्विसिंग के साथ आपको मेंटेन करने में इस गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आएगी. इट विल बी राइट ऑन योर पॉकेट and it will be fun. Also, the design is really good. Iconic Pulsar styling. So if you want fun in your daily commutes and a bike that can handle city as well as highway usage, then this is a really good motorcycle. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. So like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this motorcycle. And see you on next video. Bye.